Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start with exercise 1.5. So the question number 1 says, let U, which is a universal set, has elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now after this we are given three set A as having the elements 1, 2, 3, 4. Set B has 2, 4, 6, 8 and set C has the elements 3, 4, 5, 6. So the first part they are asking us to evaluate is A complement. So A कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो A में कंटेन नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो A में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, A में प्रेजेंट नहीं है. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज U माइनस A. तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे? अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 5, 6, 7, 8 and 9. So the set having elements 5, 6, 7, 8 and 9. This will make the set A complement. Okay. Similarly, next part we have B complement. That means elements in the universal set which are not belonging to set B. So this can be written as U minus B. अब इसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? B में हमारे 2, 4, 6, 8 है, तो इनके अलावा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स B कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे. That means 1, 3, 5, 7 and 9. ये हमारे पास सेट बनकर आ गया B कॉम्प्लीमेंट. अब वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज थर्ड पार्ट इज A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट. तो A यूनियन C निकालने के लिए, A यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम लोग A यूनियन C निकालते हैं. So A union C means all the elements of A and all the elements of C written together. So let's have the elements of A. 1, 2, 3, 4. Elements of C are 3 and 4 are already written. So remaining are 5 and 6. अब ये बन गया है A union C set. अब इसका complement means all the elements of the universal set जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जो इस A यूनियन C में बिलोंग नहीं कर रहे हैं. तो यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स कौन से होंगे? यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स होंगे 7, 8 and 9. So this becomes A union C whole complement. Similarly, we have the fourth part. It says A union B whole complement. So for A union B whole complement, we need to find out A union B first. Means all the elements belonging to set A or B. So both the elements will be written in a combined manner. So 1, 2, 3, 4. These are the elements of A, and 2 and 4 we have already written. So elements of B will be 6 and 8. Remaining elements are 6 and 8. So we write them down. Okay. So this becomes A union B. अब A union B का complement क्या हो जाएगा? A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहे हैं. यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहे हैं. इट कैन बी रिटन एज U माइनस A यूनियन B. सो व्हाट आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स नाउ? यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 5, 7 एंड 9. ये हो गए हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स. सो ये बन जाएगा हमारा A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. ओके. नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ पार्ट इज व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट. सो ये हमने पहले भी पढ़ा था. A कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है. A कॉम्प्लीमेंट इज 5, 6, 7, 8, 9. A कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ये नहीं हो, मतलब A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स. सो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास? 1, 2, 3 and 4. So we have already proved this result in the previous video that A complement is equal to the set itself, set A. Okay. Now sixth part we have. Sixth part says B minus C whole complement. So पहले उसके लिए हमें B minus C निकालना पड़ेगा. B minus C means elements of B which are not present in C. Elements of B which are not present in C. तो B के एलिमेंट्स हैं हमारे 2, 4, 6, 8.
C में एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6. So what are the elements of B which are not present in C? 2, 8. So B minus C हमारा हो गया 2, 8. अब B minus C कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 2, 8 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स. So 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. This becomes our B minus C whole complement. Okay. Now we have answer number 2 question. This was our solution 1. Now we have solution 2. Question is here. So if U is equal to A, B, C, D, E, F, G, H. Question number 2. If the universal set is given as A, B, C, D, E, F, G, H, find the complements of the following set. ठीक है, तो अब हमारे पास A is equal to ABC है, तो A कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? ABC को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स, दैट मीन्स D, E, F, G एंड H. ये बन जाएगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली B कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? B is D, E, F, G. सो यूनिवर्सल सेट में से D, E, F, G छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स बन जाएंगे. सो ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर A, B, C, D is there in set B, so we cannot write D. E is also there, F is also there, G is also there. Now H is not belonging to B, so we can write H. This is E. Okay. A, B, C and H. Now C complement. C complement हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो C में बिलोंग नहीं कर रहे हैं. सो C में कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं? B, D, F एंड H. ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेट C में बिलोंग नहीं कर रहे हैं. दैट इज व्हाई दे आर द पार्ट ऑफ C कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली वी हैव D कॉम्प्लीमेंट. D कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो D में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, राइट? सो D कॉम्प्लीमेंट विल बी B, C, D एंड E. ये सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के D में बिलोंग नहीं कर रहे हैं. दैट इज व्हाई दे आर प्रेजेंट इन D complement. So now we have question number 3. It says taking the set of natural numbers as the universal set. So universal set is given as the set of natural numbers. U will be equal to n, which is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. The set of natural numbers is taken as universal set in the question. Okay. Now it says write down the complements of the following sets. So the first one is x such that x is an even number. So this set has all the elements which are even number, even natural numbers. So इसका complement क्या हो जाएगा? x such that x is an odd natural number. x is an odd natural number, right? बहुत easy है. Complement is basically the negation of that statement. Okay? Complement is basically the negation of that statement. तो अगर x is an even number है तो इसका negation क्या हो जाएगा कि x is an odd number. Okay. Similarly, we have part 2. It says x such that x is an odd natural number. So similarly, the complement set will be x such that x is an even natural number. X is an even natural number. Third set that is given to us is x such that x is a positive multiple of 3. Now the universal set is natural numbers. So obviously all the multiples will be positive only. So no need to get confused with this positive here. ठीक है, तो अगर हमारे पास इस सेट में सारे एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 3 हैं तो इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या हो जाएगा? x such that x is not a multiple of 3. कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे. So x such that x is not a multiple of 3. Fourth set that is given to us is x such that x is a prime number. It is given that x is a prime number. Okay. So the negation will be x such that x is not a prime number. X is not a prime number. ये बन जाएगा हमारा complement set. ठीक है, x such that x is not a prime number. Also
x इज इक्वल टू 1। प्राइम नंबर्स इस सेट में हमारे पास, जो हमें सेट 4 दे रखा है, इस सेट में हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर्स होंगे जो प्राइम नहीं है? अब 1 जो है ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, सो द कॉम्प्लीमेंट सेट विल ऑल्सो कंटेन 1, so we can say that x is not a prime number, also x is equal to 1. ठीक है, now the fifth part that we have, I'm writing fifth part over here. Fifth is x such that x is a natural number divisible by 3 and 5, so the negation of the sentence will be x such that x belongs to the set of natural numbers and it is not divisible by 3 and 5. It is not divisible by 3 and 5. सो हमारे पास फिफ्थ सेट में क्या है, वो सभी नंबर्स जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, वो सभी नंबर्स जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, राइट। नाउ वी हैव द सिक्स्थ पार्ट। इट सेज x is a perfect square, so negation of the sentence will be x is not a perfect square, x such that x is not a perfect square। अगर हमारे पास सिक्स्थ सेट में सारे नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में ऑब्वियसली वही नंबर्स आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दैट इज द सेम थिंग दैट वी हैव रिटन। सेवेंथ सेट that is given to us is x is a perfect cube, again very similar to the previous part, negation of this statement will be x such that x is not a perfect cube, x is not a perfect cube। So now we have the eighth part। It says now x such that x plus 5 is equal to 8। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, x such that x plus 5 is equal to 8। इसका मतलब क्या हो गया, if I solve for x plus 5 is equal to 8, this implies x is equal to 8 minus 5, this implies x is equal to 3, so this set has element 3 in it। ठीक है, this set has element 3 in it, so इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, x such that x plus 5 is equal to 8 का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, x such that x belongs to set of natural numbers and x is not equal to 3। अगर x में सारे नेचुरल नंबर्स होंगे और वो 3 के इक्वल नहीं है उनमें से कोई भी, तो वो सभी एलिमेंट्स हमारे कॉम्प्लीमेंट के सेट में आ जाएंगे। फाइन, ओके। सिमिलरली वी हैव द ninth part। Ninth part that is given to us is x such that, I'm writing the set right now, x such that 2x plus 5 is equal to 9। अब हम यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालते हैं, so x की वैल्यू निकालिए अब यहाँ पर। So if I am solving for x here, I have 2x plus 5 is equal to 9, so 2x is equal to, we'll have 9 minus 5, this will imply 2x is equal to 4, x is equal to 2, so we have x is equal to 2 in this set, so this set is equal to 2। so इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x such that 2x plus 5 is equal to 9, इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, x such that x belongs to the set of natural number, 2 के अलावा सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, so x is not equal to 2, ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट। Similarly, I am writing the 10th part over here। It says x such that x is greater than equal to 7। मतलब हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, मतलब 7 या 7 से ज्यादा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, x such that x is less than 7। अगर हमारे पास वो एलिमेंट है जो 7 या 7 से ज्यादा है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो एलिमेंट्स जो 7 से कम है, राइट। नाउ वी हैव द 11th पार्ट। इट सेज x such that x belongs to the set of natural numbers and we are given an inequality here, 2x plus 1 is greater than 10। अब हम इस इनइक्वालिटी को जरा सॉल्व करते हैं। हम अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, सो वी हैव 2x plus 1 is greater than 10, so I can shift this 1 this side,
I'll get 2x is equal to 10 minus 1, right? 2x is equal to, I can assume here equal to, later on I'll remove this equal to with this greater than sign only, don't worry. So this, I have 9 here. Now I have x is equal to 9 by 2. अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी थी, तो इक्वल टू की जगह हम ग्रेटर देन ही डाल देंगे। हमने इक्वल टू इसलिए लगाया ताकि हमारा थोड़ा जो सिंप्लीफिकेशन है, हम जो कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो थोड़ा सा हमारे को वैसा हो जैसा हम नॉर्मली करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी डाल दी। अब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास? इस सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं? वो सभी एलिमेंट्स जो 9/2 से ज्यादा है। ठीक है, वो सभी एलिमेंट्स जो 9/2 से ज्यादा है। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 9/2। 9/2 हमारे पास क्या हो गया? 4.5, राइट? सो अब ये भी ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर्स लेने हैं। ठीक है, इसका मतलब फिर से इस सेट में क्या आ जाएगा हमारे पास? 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इसका जो हमारा सेट बन गया वो बन गया 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 9/2। इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? x such that x belongs to the set of natural numbers and x is less than equal to 9/2। इसका मतलब x जो है वो 9/2 से छोटा है या उसके इक्वल है। इक्वल हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। सो हम लोग लेस देन इक्वल टू ना लेकर सिर्फ लेस देन 9/2 लेंगे। 9/2 इज इक्वल टू 4.5। सो इस कॉम्प्लीमेंट सेट में हमारे कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो जो 4.5 से छोटे हैं। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर्स व्हिच आर लेस देन 4.5? 1, 2, 3 एंड 4। सो ये बन जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट। Now we have question number 4. It says if U is equal to, universal set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. We are given two set. Set A has even numbers 2, 4, 6, 8. Set B also has 2, 3, 5, 7. ठीक है, तो हम एक तरह से 2 जो है वो दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू अस इज A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. This is the De Morgan's law that we've already studied in the previous video. Okay, so we'll take the LHS first. LHS has the set A union B whole intersection. So in order to write the intersection, first we'll write down what is A union B. A union B means all the elements of A and B together. So we have 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7. This makes the A union B set. अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स जो A यूनियन B में प्रेजेंट नहीं है। सो वो कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास? 1, 9. सो दिस बिकम्स A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली वी टेक द RHS नाउ। सो RHS में हमें क्या दे रखा है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितना आएगा? यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स जो A में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारा बन गया A कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाते हैं। देन वी राइट B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, राइट? सो इसमें हमारे पास आ जाएंगे 1, 4, 6, 8 एंड 9। दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों सेट में हमारे कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे? 1, 9। Now the set 1, 9 that was in LHS is equal to the set 1, 9 in the RHS. So therefore LHS is equal to RHS. हमने प्रूव कर दिया है कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे हमारा सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं? A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सो फिर से हमने LHS का सेट उठाया। LHS में हमारे पास है A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम A इंटरसेक्शन B लिखते हैं। अब आप देखिए A और B में कॉमन एलिमेंट क्या है? 2।
टू जो है वो ए में भी है, बी में भी है, टू के अलावा कोई और कॉमन एलिमेंट नहीं है ए और बी में। सो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आ जाएगा? टू। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन में नहीं है, मतलब टू को छोड़ के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, सो दिस विल बी 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारा बन गया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें आरएचएस का सेट क्या दे रखा है? वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो इस पार्ट में हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल रखा है, राइट? सो ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 5 7 9। नाउ वी पुट द यूनियन, देन वी हैव 1 4 6 8 9। अब हमें इन दोनों सेट का यूनियन लेना है, दैट मीन्स 1 3 5 7 9। then again 1 is here, we will not repeat it, we will write 4 6 8। अब आप देखिए इस सेट के एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। 1 इज देयर, 3 इज देयर, 4 इज देयर, 5 6 7 8 एंड 9। सो हम क्या लिख सकते हैं? LHS is equal to RHS। ठीक है, this was supposed to be proved, hence proved। We have question number 5, it says draw appropriate Venn diagrams for each of the following। So first set हमें क्या दे रखा है? A union B whole complement। So complement दिखाने के लिए पहले हमें A union B देखना पड़ेगा कौन सा है। ठीक है, so A union B मतलब पूरा A, the entire A set and the entire B set, right? So I am shading right now A union B first। Okay, what I am shading in green right now is A union B। Fine. Now the remaining portion of this rectangle, or we can call it a universal set, this will be the complement set of A union B। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो क्या बन जाएगा हमारा? A union B का complement। So this entire region that I am shading in red right now, this is A union B complement। So this is A union B complement, and what I have shaded in green, that is A union B। Fine. Now next is A complement intersection B complement। अब आप याद कीजिए हमने डिमॉर्गन्स लॉ में क्या पढ़ा था? इन डिमॉर्गन्स लॉ वी हैव स्टडीड दैट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो जो वेन डायग्राम हमने इस पर्टिकुलर सेट के लिए बनाया था, सेट 1 के लिए बनाया था, वही सेम वेन डायग्राम सेट 2 के लिए भी हो जाएगा हमारा। फाइन। So this is the same Venn diagram that we require for A complement intersection B complement। Fine. Now let's come to A intersection B whole complement। तो complement दिखाने के लिए पहले हम A intersection B को मार्क कर देते हैं। ठीक है, again I am marking A intersection B by green। So ये मैंने A intersection B मार्क कर दिया। फाइन। अब इस शेडेड रीजन को छोड़कर बाकी सारा रीजन जो होगा हमारा, दिस एंटायर रीजन, व्हाट आई एम शेडिंग इन रेड राइट नाउ, this entire region will be A intersection B whole complement। ठीक है, the entire region shaded in red will be A intersection B whole complement। Fine. So this is A intersection B whole complement। ठीक है, अब अगेन हमने दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ क्या पढ़ा था? that A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। तो अगेन जो वेन डायग्राम हमने इस पर्टिकुलर सेट के लिए ड्रॉ करा है वही वेन डायग्राम फोर्थ सेट के लिए भी हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द वेन डायग्राम दैट दे रिक्वायर फॉर all the different sets given to us। Now question number 6 says let U be the set of all the triangles in a plane। So we are writing universal set U, all the triangles in a plane, all the triangles in a plane। Fine. Now it says if set A is all the triangles with at least one angle different from 60 degree। So that means set A is set of all the triangles, fine, with at least one angle different from 60 degree, with at least one angle different from 60 degree।
फाइन, इसका क्या मतलब हुआ कि ए सेट में वो सभी ट्राइंगल्स हैं जिनमें से एटलीस्ट एक एंगल ऐसा होगा जो 60 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, राइट। सो अब हमें इसका एक कॉम्प्लीमेंट लिखना है। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या हो जाएगा, जब हमें एटलीस्ट दिया होता है एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, इसका निगेशन हो जाएगा ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। सो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से ट्राइंगल्स आ जाएंगे, सेट ऑफ ट्राइंगल्स in which all three angles are of 60 degree, or we can call it set of all the triangles in which all the angles are equal which is of 60 degree, or set of all the equilateral triangles। ठीक है, a complement हो जाएगा set of all the triangles in which three angles are equal to 60 degree। a set हमें given था in which all the triangles have at least one angle different from 60 degree। इसका मतलब एक एंगल ऐसा है उस उन ट्राइंगल्स में जो 60 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल दोस ट्राइंगल्स व्हिच हैव ऑल द एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट। फाइन, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट हम किस में से लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ही लिखते हैं। तो अगर हम एक यूनियन ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। फाई इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। फाइन, अब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में और ए में कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ए के ही एलिमेंट्स कॉमन होंगे। सो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू ए। तो हम क्या कह सकते हैं, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू ए। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है, राइट। सो हमें इन दोनों सेट्स में वी विल नॉट फाइंड एनी कॉमन एलिमेंट। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 5। अब हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब जैसे अगर हमारे पास 5 कॉम्प्लीमेंट यू था तो यू कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, सो नाउ 5 इंटरसेक्शन ए कितना हो जाएगा, 5 और ए में कोई कॉमन एलिमेंट निकलेगा हमारे पास, नहीं निकलेगा क्योंकि 5 में तो एलिमेंट ही नहीं है, 5 इज एन एम्प्टी सेट। सो 5 इंटरसेक्शन ए विल बी 5 only। Fine, so this blank is empty set 5। So we have finished with exercise